आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को बायनोमियल थ्योरम से रिलेट करने वाले। यस यू हर्ड इट राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द बायनोमियल थ्योरम। ओके, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। क्विकली टेल मी व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। ओके, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बायनोमियल थ्योरम लिखता हूँ। यू जस्ट नीड टू टेल मी वेदर दैट्स द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द बायनोमियल थ्योरम और नॉट। ओके, सो x plus y to the power n, okay, is equals to nc0 x to the power n into y to the power 0 plus nc1 into x to the power n minus 1 into y to the power 1, okay, and so on ncn into x to the power 0 into y to the power n, okay। ये तो मैंने एक एक्सपेंशन लिखा, एक और एक्सपेंशन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। x plus y to the power n is equals to nc1 into x to the power n into y to the power 0 plus nc2 into x to the power n minus 1 into y to the power 1 and so on ncn into x to the power 0 into y to the power n, okay। Now consider it as option A, consider it as option B. You guys have to tell me which is the correct expansion or correct binomial expansion. Yes, you guessed it right. The correct binomial expansion is going to be x plus y to the power n equals to nc0 x to the power n into y to the power 0. You can also write down it as nc0 into x to the power 0 y to the power n. Doesn't matter at all. Okay. Second वाला जो है it's starting from nc1. इसको ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। The second option has only n terms, but this binomial expansion has n plus 1 terms. Okay, आप x plus y का स्क्वायर ही लेके देख लीजिए, there will be 3 terms into that. Okay, चलिए ठीक है। So after having an idea of binomial expansion, एक छोटा सा expansion और आप लोगों ने पढ़ा था binomial के अंदर। Let me quickly revise that. So if you have equation of the form 1 plus x to the power n, इसका एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ा है बायनोमियल के अंदर। सो यू कैन राइट डाउन इट एज nc0 into x to the power 0 plus nc1 into x to the power 1 plus nc2 into x to the power 2 and so on ncn into x to the power n, ओके। एक और इसको लिखने का अच्छा तरीका आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा ईजी लगता है। सो यू कैन राइट डाउन इट एज c0 x to the power 0, so I'll not write down x to the power 0 at all. I'll just keep it as c0, okay, plus c1 into x plus c2 x square and so on cn x to the power n, okay। ये मेरा बायनोमियल एक्सपेंशन है, ओके। आज मैं आप लोगों को इसी बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे यूज करना है वो बताने जा रहा हूँ। दिल थाम के बैठिए, बहुत ही मज़ेदार चीज़ शुरू होने वाली है। द रिलेशन ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन विद द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। यूजुअली होता क्या है, बायनोमियल एक्सपेंशन जब भी हम लोग करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में वेराइटी ऑफ पैटर्न्स आते हैं, ओके। सपोज दे माइट गिव मी दिस काइंड ऑफ पैटर्न, ओके। फाइंड आउट व्हाट इज c0 plus c2 plus c4 and so on c6, ये एक तरह का पैटर्न बन गया, ओके। दे माइट ऑल्सो गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न, फाइंड आउट व्हाट इज c0 माइनस c2 प्लस c4 एंड सो ऑन, ओके। तो आज हम लोग उन्हीं टाइप के पैटर्न्स की बात करने वाले, ओके। सपोज सबसे पहला पैटर्न ही मेरे पास ऐसा है कि व्हाट इज c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस c6, ओके। देन व्हाट वाज द ट्रेडिशनल वे व्हिच वी यूज्ड इनटू आवर बायनोमियल थ्योरम चैप्टर। सी दिस वाज माय एक्सपेंशन 1 plus x to the power n। इफ यू पुट x is equals to 1 over there, एक बार x is equals to 1 रख देते हैं। So what you will get 2 to the power n, 1 plus 1 to the power n, okay, equals to nc0, so you will get it as c0 only, plus c1 into x, that will be c1, plus c2 into x square, that is c2 into 1 square। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, दिस इज सेम एज c1 plus c2 plus c3 plus so on up to c to the power n, okay। अब मैंने क्या किया, now I'll put x as minus 1, okay। So what will happen into the left, ध्यान से देखो, 1 into 1 minus 1 to the power n, so that's 0 to the power n, so basically यहाँ पर 0 आएगा।
is equals to C0 as it is, C1 into minus 1. So you will get minus C1 over there, okay, plus C2 into minus 1 square, that is C2 only. चलो ठीक है, कुछ पैटर्न अब आप लोगों को ऑब्जर्व हो जाएगा, ओके, एंड सो ऑन अप टू माइनस 1 टू द पावर n इंटू सी एन. ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा पैटर्न मिलेगा, ओके. 2 to the power n plus 0 same as 2 to the power n equals to 2 times C1, all the odd terms will cancel out, okay, and even terms will be doubled, so you will get it as 2 times C0 plus C2 plus C4 and so on, okay. So basically मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा हूँ, I'm trying to give you the sum of all the even terms, okay. So you can write down it as 2 to the power of n minus 1 equals to C0 plus C2 plus C4 plus C6 and so on, okay. तो सारे even coefficients का term, even binomial coefficients का term मेरे पास में क्या आ जाता है, 2 to the power of n minus 1, okay. अच्छा ठीक है, ये तो मैंने एक पैटर्न दिखाया आप लोगों को. Now there is a possibility of another pattern also. एक और पैटर्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. Suppose you have to find out the series, sum of the series, okay. कुछ series मेरे पास ऐसी है, C0 minus C2, okay, plus C4 minus C6, okay. इसका सम बताओ, okay, and it goes on up to infinity, okay. इसका सम बताओ. तो अगेन बहुत ही इजी तरीका है, ध्यान से सुनो. सो अगेन I'll first write down my expansion. मेरा expansion है, इसी से मैं आप लोगों को दो सीरीज के सम सिखाने वाला हूँ, ठीक है. सो मेरा expansion है 1 plus x to the power n is equals to C0 plus C1x plus C2x square plus C3x cube plus C4x to the power 4 plus C5x to the power 5. बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं. And so on up to Cn x to the power n. Okay. So what will I do? The first thing which I'll do is put x is equals to iota. Okay. x की वैल्यू iota रख रहे हैं, ध्यान से देखो. x की वैल्यू iota रखते ही क्या होगा? So you will get 1 plus iota to the power n equals to C0 plus C1 iota plus C2 into iota square. iota square तो -1 होता है, so you won't write down plus over that. Instead हम लोग को यहाँ पे minus C2 लिखना पड़ेगा, okay. Now C3 into iota cube. What is iota cube? It's same as minus iota, okay. So यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं minus C3 iota. Now C4 into iota to the power 4. What's that? That's plus का iota. So C4 over here, okay. And so on, okay. लास्ट वाले टर्म में कुछ ना कुछ आएगा, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट. अच्छा, अभी तो मैंने x की जगह आयोटा रखा है. नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज पुट x इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ओके. माइनस आयोटा रखते ही भी फिर आप लोगों के पास में और एक मजेदार सी चीज आएगी, ओके. अभी दिखाते हैं आप लोगों को. सो when you're gonna put x is equals to minus iota, आप लोगों के पास में एक नया रिजल्ट ऑल टुगेदर एक नया रिजल्ट बन के आ जाएगा, ठीक है. चलो अभी अपन x की वैल्यू माइनस आयोटा नहीं रखते हैं. C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं अगर सिर्फ x इज इक्वल्स टू आयोटा पुट करूँगा तो भी मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है. चलो पहले इसी का रिजल्ट देख लेते हैं और आने वाले रिजल्ट के अंदर माइनस आयोटा रख के देखेंगे, ठीक है. सो इन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके. आप लोग इसका मैग्नीट्यूड मुझे बता सकते हो. क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा. यस, यू गेस्ड इट राइट, इट विल बी √2, ओके. सो इसका मैग्नीट्यूड हो गया √2 टू द पावर n, ओके, जिसको आप लोग 2 टू द पावर n by 2 भी लिख सकते हैं. ओके, आई एम नॉट राइटिंग इट राइट नाउ, ओके. अच्छा, अब इसका जो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा वाले पार्ट से लिख सकते हैं, राइट. अच्छा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या आएगा बेसिकली? एक्चुअली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आएगा आप लोग का π/4, ओके, बिकॉज यू कैन चेक इट आउट. x इज ऑल्सो 1, y इज ऑल्सो 1, ओके. सो योर आर्ग्यूमेंट विल बी π/4. तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज सेम एज सिस π/4, ओके. अभी सिस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. लेट मी कीप ऑल द रियल वैल्यूज विथ वन साइड, ऑल द
imaginary values onto the another side. Okay, तो ध्यान से देखो रियल वैल्यूज में मेरे पास में आएगा C0 प्लस नहीं प्लस नहीं एक नेगेटिव आएगा माइनस C2, देन आएगा प्लस का C4. इसको अगर आप एक्सटेंड करके देखोगे तो यू विल गेट नेगेटिव C6 ऑल्सो ओवर दैट. ओके, तो ये सारी तो मेरी रियल वैल्यूज के अंदर आ रहा है. ओके, एंड सो ऑन डैश डैश डैश. ओके, अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर ब्रैकेट में मेरे पास सारी इमेजिनरी वाली वैल्यूज आ जाएगी. लाइक यू विल गेट C1, यू विल गेट नेगेटिव C3 एंड सो ऑन, प्लस का C5 आएगा एंड सो ऑन. ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है बस इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. ओके, इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो पहले एक बार इसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से लिख लेते हैं. सो यू कैन राइट डाउन इट एज 2 to the power n by 2 cos pi by 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4. ओके, इसी तरह से हम लोग सिस थीटा को ओपन करते हैं, राइट, एंड दैट विल बी सेम एज द रियल पार्ट प्लस द इमेजिनरी पार्ट. ओके ओके, नाउ ऑल यू नीड टू डू इज, क्योंकि रियल पार्ट हमेशा इक्वल होता है तो हम लोग रियल पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं. ओके, cos pi by 4 is by the way 1 by root 2. So what you can say 2 to the power n by 2 into cos pi by 4, that's 1 by root 2 will be equal to C0 minus C2 plus C4 minus C6 and so on. तो इससे आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा दिस इज सेम एज रूट 2 to the power n minus 1 which is equals to C0 minus C2 plus C4 minus C6 and so on. Okay? इसी तरह से अगर आप लोग इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने जाओगे so what you will get the same result. Okay, root 2 to the power n minus 1 equals to C1 minus C3 plus C5 and so on dash 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 dash. Okay, तो इस तरह की सीरीज भी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं. ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. ओके, सपोज करिए मेरे पास में कुछ ऐसी सीरीज है C0 प्लस C3 प्लस C6 एंड सो ऑन, C9 वगैरह ये सब आगे आ जाएगा. ओके, मुझे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ. ओके, सो लेट मी गिव यू अ हिंट. यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ऑल यू नीड टू डू इज x की 3 वैल्यूज रखनी पड़ी. सी इफ देयर वाज अ गैप ऑफ 2 आई टुक 2 वैल्यूज प्लस आयोटा माइनस आयोटा. इफ देयर इज अ गैप ऑफ 3 आई नीड टू टेक 3 वैल्यूज. क्या वो 3 वैल्यूज क्या हो जाएंगे? सी द फर्स्ट वैल्यू विल बी 1, द सेकंड वैल्यू विल बी ओमेगा एंड द थर्ड वैल्यू विल बी ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी. ओके, इसको यूज करके क्या मिलेगा, इसको यूज करके ना आप लोगों को बीच में एक बार सम ऑफ द रूट्स मिलेगा और वो सम ऑफ द रूट्स जो होता है ना वो हमारा 0 होता है. ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल ले ही लेते हैं. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोना डू इज आई पुट x इज इक्वल टू 1. एक्सपेंशन तो हम लोगों को याद है ही है, दैट्स, चलो एक बार फिर भी लिख देते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू C0 plus C1x plus C2x square plus C3x cube and so on up to Cn x to the power n. Okay? तो x की वैल्यू 1 रखते ही ध्यान से देखो, you will get it as 2 to the power n equals to C0 plus C1 plus C2 and so on. C3 भी आएगा, चलो वो भी लिख देते हैं and so on up to Cn. Okay? एक बार आप लोग x की वैल्यू ओमेगा रख दीजिए. So x की वैल्यू ओमेगा, so we'll get it as 1 plus omega to the power n, that will be equal to C0 plus C1 omega plus C2 omega square plus C3 omega cube. Omega cube आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, this is same as 1. Okay, so you can write down it as directly C3 and so on. Okay, अब एक बार x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर भी रख देते हैं. So once you're going to do that, it will become 1 plus omega square to the power n, which is equals to C0 plus C1 omega square plus C2 omega to the power 4. अब omega to the power 4 को तो हम लोग लिखते थे omega cube into omega, which is same as omega. So you will get it as C2 omega and C3. So C3 into omega square to the power 3. So पावर 3 हो रहा है तो वो तो वैसे भी C3 ही आना है एंड सो ऑन. ओके, अब तीनों को ऐड कर दीजिए.
सो ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा बनेगा 2 to the power n प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n इक्वल्स टू सी नॉट आप लोग का ऐड हो जाएगा, यू विल गेट 3 C0. ओके, अब ध्यान से देखो, यू हैव दीज 3 टर्म्स, लेट मी जस्ट अंडरलाइन देम, C1 ओमेगा स्क्वायर. ओके, अगर आप तीनों में C1 कॉमन ले लेंगे, in the bracket you will get 1 plus omega square. Okay, what is 1 plus omega square? Yes, you guessed it right, it's gonna be 0. Okay, तो C1 के साथ में हम लोग बेसिकली 0 को मल्टीप्लाई करें, तो we don't need to take that at all. तो anyway C1 वाला कैंसिल आउट हो गया. अब C2 को भी चेक कर लेते हैं. See, if you take out C2 common in these 3 terms, first, second and this third term, okay, if you take out C2 common in all 3 of these terms, तो ध्यान से देखोगे ना, तो आप लोगों के पास में ऐसा कुछ बनेगा C2 into 1 plus omega square. Okay, now what is 1 plus omega square? It's again 0. तो C2 की टर्म भी 0 हो गई. ओके, आप लोगों के पास में अगली टर्म बचेगी, दैट विल बी 3C3 एंड सो ऑन. ओके, तो यहाँ से आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 2 to the power n प्लस, अच्छा 1 plus omega is equals to minus omega square. ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए minus omega square to the power n plus 1 plus omega square, that's equals to minus omega. Okay, and that's equals to 3 times C0 plus C3 plus C6 and so on. अब तो पैटर्न आप लोगों को दिख ही गया है. Okay, so you can directly get the value of C0 plus C3 plus C6 and so on from here. That will be 2 to the power n minus plus minus omega to the power 2n plus minus omega to the power n divided by 3. ओके, तो इस तरह से हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बाइनोमियल थ्योरम को भी लगा सकते हैं. ओके, एक और छोटा सा रिजल्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ रिगार्डिंग दिस रिगार्डिंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच कुड बी यूज्ड इनटू आवर ट्रिग्नोमेट्री. यस, ट्रिग्नोमेट्री में भी एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़े हैं. ऑल दोज एक्सपेंशन, नॉट ऑल दोज एक्सपेंशन, बट काफ़ी सारे एक्सपेंशन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को वापस रिवाइंड करवाना चाहता हूँ. इफ़ यू ऑल रिमेंबर, हमने जब nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे, व्हेन वी सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन z टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू 1. ओके, व्हाट वाज माय सम ऑफ ऑल द रूट्स? क्विकली आंसर मी, व्हाट वाज सम ऑफ ऑल द रूट्स? यस, यू गेस्ड इट राइट, सम ऑफ ऑल द रूट्स वाज 0. ठीक है, तो अब एक बार मैं रूट्स को वापस से लिख देता हूँ. ओके, तो सारे रूट्स ऑफ यूनिटी मेरे पास कुछ ऐसे आ रहे थे. ध्यान से देखिए, आई जस्ट राइट डाउन देम. ओके, सो द फर्स्ट रूट वाज 1, द नेक्स्ट रूट वाज ओमेगा, द नेक्स्ट वन वाज ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन. ऐसे चल रहे थे मेरे सारे क्यूब रूट्स. ओके, नॉट क्यूब रूट्स, nth रूट्स ऑफ द यूनिटी. ओके, तो अब ध्यान से देखिए, मैं सारे के सारे रूट्स को प्रॉपर वे में जमा के लिखने वाला हूँ. ठीक है, सो इट वाज 1 प्लस सिस, या फिर चलो e की पावर फॉर्मेट में लिख देते हैं. ओके, सो इट वाज 1 एंड देन e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n. ओके, हम लोगों ने nth रूट्स ऑफ यूनिटी से निकाला था. द नेक्स्ट रूट वाज e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाय n एंड द नेक्स्ट रूट वाज e टू द पावर आयोटा 6 पाई बाय n. ओके, एंड सो ऑन. मैं अब आगे के रूट्स नहीं लिखने वाला हूँ. ठीक है, सो व्हाट यू कैन से, वी कैन क्लियरली से दैट रियल पार्ट ऑफ ऑल द सम ऑफ द रूट्स, ओके, मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन, दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि सम ऑफ ऑल द रूट्स इज 0. सिमिलरली इनका इमेजिनरी पार्ट जो होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर and so on, that should also be equal to 0, क्योंकि sum of all the roots is what? It is 0, right? So its real part has to be 0 and its imaginary part has to be 0. ठीक है, अब ध्यान से देखो, e to the power iota 2 pi by n को अगर हम लोग cis theta के फॉर्म में लिख दें, okay? So please observe carefully, then its real part will be 1 plus cos 2 pi by n plus cos 4 pi by n plus cos 6 pi by n
एंड सो ऑन. ओके, बेसिकली कॉस की एक सीरीज बन रही है आप लोगों की यहाँ पे. ओके, एंड बाय द वे व्हाट इज दिस गोना बी? दिस इज गोना बी 0. ओके, तो यहाँ से आप लोगों को एक रिजल्ट मिल जाएगा बहुत ही प्यारा सा, एंड दैट इज कॉस 2 पाई बाय n प्लस कॉस 4 पाई बाय n प्लस कॉस 6 पाई बाय n एंड सो ऑन. देयर सम इज व्हाट? देयर सम इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, इन द सेम मैनर मैं आप लोगों को साइन का रिजल्ट यहाँ पे बता देता हूँ. सिंस द इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो गोना बी 0. ओके, सो व्हाट यू कैन से इमेजिनरी पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन. वैसे इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है ध्यान से देखो. सो इमेजिनरी पार्ट विल बी, ओके चलो आई जस्ट राइट डाउन द इमेजिनरी पार्ट. सो इमेजिनरी पार्ट विल बी आयोटा साइन 2 पाई बाय n. ओके, आयोटा सबके अंदर कॉमन आएगा. ओके, प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय n एंड सो ऑन. ये सारी जैसे हमारी कॉस की सीरीज चल रही है वैसे हमारी साइन की भी सीरीज चलेगी. ओके, दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0. तो यहां से आप लोगों के पास में एक और रिजल्ट आ जाएगा, साइन 2 पाई बाय n प्लस साइन 4 पाई बाय n प्लस साइन 6 पाई बाय n एंड सो ऑन. देयर सम विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. ओके, तो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं इनटू द बायनोमियल थ्योरम एंड इनटू द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस जो कि हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, सो आज के माइक्रो लेक्चर के अंदर इतना ही. मिलते हैं अगले माइक्रो लेक्चर के अंदर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.